بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرین کرام، جیسا کہ یہ سلسلہ جاری ہے، مؤلف کتاب نے شرک اکبر کی اقسام کا یا بعض شکلوں کا تذکرہ کرتے ہوئے جادو، کہانت اور غیبی خبریں جاننے کا دعویٰ کرنا، اس موضوع سے بھی یہاں پہ اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے لیے جاننا ضروری یہ ہے کہ جادو کہتے کسے ہیں۔ اس شرک کے اندر جادو، کہانت اور غیبی چیزوں کا دعویٰ کرنا، یہ چیزیں ہیں کیا؟ پہلے ہم جاننا یہ چاہتے ہیں کہ جادو کسے کہتے ہیں۔ تو جادو کچھ مخصوص کلمات، کچھ منتر یا گرہیں جس کے اندر پھونک کے ذریعے دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، یا اگر کوئی شخص کے اوپر پہلے سے جادو کیا جا چکا ہے تو اس کے جادو کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا جادو یہ صرف وہم و خیال ہے یا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ ناظرین کرام، جادو ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کسی بھی صورت میں درست نہیں ہوگا۔ جادو کے انکار سے قرآن و حدیث کا انکار لازم آئے گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس بابت فرماتے ہیں کہ جس نے جادو کا انکار کیا، گویا کہ اس نے اس چیز کے بارے میں حکم لگایا، اس چیز کا انکار کیا جس کے بارے میں اسے خود ہی علم نہیں ہے۔ جادو کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کے اندر جو آیت ہے اسی کو پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، جب اس وقت یہ آیت اس چیز کے بارے میں ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جو جادوگر تھے ان لوگوں کو میدان میں اتارا گیا اور موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کی بابت وقت آ گیا۔ انہوں نے سوال کیا کہ آپ اپنا کرتب پہلے دکھائیں گے؟ ان جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہی سوال کیا کہ آپ اپنا کرتب شروع کریں گے پہلے یا یہ کہ ہم شروع کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اپنا کرتب آپ لوگ شروع کریں۔ اور قرآن مجید کی آیت اسی بات کو بتلا رہی ہے۔ قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے یہ فرمایا کہ تم ہی اپنا کرتب شروع کرو، تو یہ خیال موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال گزرنے لگا، ایسا ان کو لگنے لگا کہ یہ رسیاں اور لکڑیاں جو ہیں من سحرہم یخیر الیہ من سحرہم انہا تسعی، اس جادو کے زور اور جادو کے اثر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا لگنے لگا کہ یہ رسیاں چل رہی ہیں، دوڑ رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں۔ تو یہاں جادو کا اثر تھا، اور یہ جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ دور جو تھا وہ جادوگروں کا دور تھا۔ اور دور نہ جا کر کے، چونکہ وقت مختصر ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ہی میں ہم تھوڑی سی جانکاری لے لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت احادیث موجود ہیں۔ وہ حدیث جس میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں صاف صاف بخاری کی اس روایت کے اندر وضاحت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خود جادو کیا گیا تھا، اور اس جادو کا اثر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، یہاں تک کہ آپ کوئی کام اگر کیے ہوتے تو ایسا لگتا کہ اس کام کو آپ نے انجام نہیں دیا ہے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ آپ کوئی کام کیے ہیں اور آپ کو تو ایسا لگتا کہ نہیں کیے ہیں، اور اگر کوئی کام کر چکے ہیں یا نہیں کیے ہیں تو ایسا لگتا کہ آپ نے اس کام کو انجام دے دیا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک مطول حدیث ہے، اور اس حدیث کے اندر ایک بات کا تذکرہ اور موجود ہے کہ
وہ दो फरिश्ते जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ख्वाब में आए, आपके पास एक सिरहाने और दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर के पास बैठा, उन लोगों ने आपस में सवाल जवाब किया, तो ये बात भी आई कि ये जादू किसने किया है। बाकायदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है, उसमें सुम्मा क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही मा वजअ अर्रजुल قال مطبوب قال ومن طبه قال لبيد بن الأعصم اليهودي من بني سريق، यानी बनी सुरैक के कबीले का लबीद बिन आसम नामी शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया था। तो जादू एक हकीकत है जिसका इनकार किसी भी सूरत में किया नहीं जा सकता है। और बाद में इस हदीस के अंदर जो चीज़ मौजूद है वो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने साहबे कराम के साथ गए, और बाद रवायतों को ये भी मिलता है कि अंदर मौजूद है कुछ दीगर साहबे कराम को आपने वहां भेजा। बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उस कुएं के अंदर दफन करने का हुक्म दिया था। नाज़रीन किराम, अगर ये हकीकत है तो इसका शुमार किस चीज में होगा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दूसरी हदीस अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। फ़अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज्तनिबु सबअल मूबिक़ात। क़ालू या रसूलल्लाह वमा हुन्ना? क़ाल अश्शिर्कु बिल्लाह वस्सिह्रु वक़त्लु नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल्हक़् वअक्लु रिबा वअक्लु माल यतीम वत्तवल्ली यौम अज़्ज़हफ़ वक़ज़फ़ुल मुहसनात अलमुमिनात अलगाफ़िलात। इस हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 हलाक कर देने वाली चीज़ों से बचो। वो 7 हलाक कर देने वाली चीज़ों के बारे में जो सहाबे किराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ए अल्लाह के रसूल वमा हुन्ना, वो क्या चीज़ें हैं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले नंबर पर जिस हलाक कर देने वाली चीज़ का तज़किरा किया, अश्शिर्कु बिल्लाह, अल्लाह तबारक तआला के साथ शिर्क करना। और दूसरे नंबर पे जिस चीज का तस्करा फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जादू का। जादू एक ऐसी चीज है जो इंसान को हलाक कर देती है, हलाकत और तबाही व बर्बादी की तरफ ले जाती है। और तीसरे नंबर पर कत्ल का तस्करा किया कि अगर किसी शख्स का नाहक कत्ल किया गया है तो ये भी हलाक कर देने वाली चीज में से है। अब आप बतलाइए कि दूसरे नंबर पर कत्ल से पहले जो चीज जिक्र की गई है, शिर्क, और कत्ल के बीच में जिस चीज का दूसरे नंबर पे जो तस्करा किया गया है वो है जादू। उलमा किराम ने इस चीज से ये मसला मुस्तंबत किया है कि गोया कि उस चीज से भी जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़त्लु नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़, इससे भी कहीं ज्यादा खुतूरत जादू के अंदर मौजूद है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे नंबर पर इसका तस्करा किया है। नाज़रीन किराम, जादू किस लिए किया जाता है? जादू की बहुत सारी अक़साम हैं और जादू का इस्तेमाल बहुत सारे अगराद व मकासद के लिए किया जाता है। कभी कभार इंसान को किसी मर्ज में मुब्तला करने के लिए जादू किया जाता है, तो कभी कभार मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात बिगाड़ने की गरज से भी जादू किया जाता है। मुख्तलिफ अगराद व मकासद के लिए जादू किया जाता है। लेकिन मसला यह है कि अगर किसी शख्स को जादू का असर हुआ है और पता चल जाए कि इस शख्स के ऊपर जादू किया गया है, तो फिर क्या करेंगे? तो हमें तमाम मुसलमानों को इस बात का हुक्म दिया गया है कि हम सब कुरान और हदीस की तरफ रुजू करें और वहीं से अपना इलाज तलाशें। मुअव्विज़तैन और इसके अलावा बहुत सारी आयात मौजूद हैं। कुरान खुद बताते खुद पूरा कुरान शिफा है, इसलिए हमें कुरान ही से इसकी शिफा तलाश करनी चाहिए। कि जाए कि इंसान जादूगरों के पास जाए और उनसे खुद इस जादू का तोड़ तलाश करे। ये मुअल्लिफ ने इस किताब के अंदर इसका तस्करा करके ये बात बतलाने की कोशिश की है कि इसका भी शुमार उन शिरकियात में से है जिन्हें शिर्क अकबर का दर्जा दिया जाता है। मोहतरम नाज़रीन, इसी ज़िम्न में कहानत का भी तस्करा किया गया है। कहानत किसे कहते हैं? अटकल पच्चू से कुछ सच और झूठ मिलाकर गैब दानी का दावा करना, एक सच के साथ 99 झूठ मिलाकर ये दावा करना कि मैं गैबियात के बारे में इल्म रखता हूँ, यही वो चीज़ है जिसे कहानत कहा जाता है। और आज के इस दौर में अगर देखा जाए तो ये चीज़ हकीकत में बहुत अरूज पर है। जगह जगह मार्केटों में, जगह बाजारों में जाइए, राह चलते आपको बोर्ड नज़र आएंगे, ऐलानात नज़र आएंगे, जहाँ जाकर आप अपनी किस्मत का फैसला करवा सकते हैं। ये उन लोगों का दावा है। लेकिन
अगर कोई शख्स ये काम करता है और उन लोगों पर यकीन रखता है जो इस गैब दानी का दावा करते हैं, उनके पास जाकर उनसे सवालात करता है और फिर उनकी बातों को यकीन करता है, तो उसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर फरमाया, मन अता काहिनन औ अर्राफन फसद्दक़हु बिमा यक़ूल फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर बड़ी वजाहत के साथ ये बात फरमा दी है कि अगर कोई शख्स किसी काहिन, किसी नुजूमी के पास जाता है, जो वो बात, अगर नुजूमी या काहिन कोई बात हथेली की रेखा को देखकर कुछ लकीरें जमीन और रेत पर लकीरें खींचकर कुछ गैब दानी का दावा करके और बतलाता है और पूछने वाला शख्स उसकी बात को यकीन करता है, तो गोया कि उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत का इनकार किया। अगर कोई शख्स यकीन नहीं करता लेकिन फिर भी ऐसे लोगों के पास जाकर गैब के बारे में मालूमात करता है, तो उसके बारे में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे शख्स की नमाज 40 दिन तक कबूल नहीं होगी। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन अता अर्राफन फसअलहु अन शैइन लम तुक़बल लहु सलातुन 40 लैला, 40 रात तक, 40 दिन तक उस शख्स की नमाज कबूल नहीं होगी जो किसी काहिन के पास जाकर उससे गैब की बातें पूछता है, गरचे उस पर यकीन नहीं रखता है। इसलिए नाज़रीन किराम, हमें और आपको इन तमाम आमाल से बचना चाहिए जो हमें शिर्क अकबर की तरफ ले जाते हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको इन तमाम मुहलिक बीमारियों से महफूज रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।